کنڈاسول گوادر میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ قلات پولیس تھانے کے قریب ہینڈ گرنیڈ دھماکہ، ہب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے باپ جاں بحق بیٹا زخمی۔ فٹ بال کے بادشاہ پیلے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و اشبات۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق گوادر کے علاقے کنڈاسول تنک میں قائم سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ حملے سے نقصانات کا تعین تاحال نہیں کیا جا سکتا، البتہ حملے کے بعد فورسز نے متعدد مارٹر گولے فائر کیے اور کافی دیر تک فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق قلات پولیس تھانے کی حدود میں نامعلوم افراد نے این گرنیڈ دھماکہ کیا۔ دھماکے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ الہ آباد ٹاؤن میں کباڑی کے گودام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی۔ باپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، جبکہ بیٹے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہب پولیس کا دعویٰ ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے، جس میں 45 سالہ عبداللہ مغسی جاں بحق اور 13 سالہ بیٹا یاسین زخمی ہوا ہے۔ نامعلوم افراد واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آوران سے لاپتہ نوجوان کی لاش برآمد۔ آوران سے لاپتہ نوجوان کی لاش برآمد۔ آوران انتظامیہ کے مطابق 13 دسمبر سے لاپتہ عامر ولد بابو ساکن گشانگ کی لاش آوران کے علاقے بزداد سے برآمد ہوئی۔ انتظامیہ نے لاش کو DHQ اسپتال آوران پہنچا کر ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ لاپتہ افراد سے متعلق وزیر داخلہ بلوچستان کی سربراہی میں ایک اور کمیشن قائم۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے لاپتہ افراد سے متعلق پارلیمانی کمیشن قائم کر دیا ہے۔ پارلیمانی کمیشن بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر قائم کیا گیا ہے، جبکہ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لنگو پارلیمانی کمیشن کے چیئرمین ہوں گے، اور اس کے علاوہ رکن اسمبلی اسد اللہ بلوچ، زابید ریکی، نصیر شاہوانی اور زمرک اچکزئی کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ پارلیمانی کمیشن بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر قائم کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کمیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کیچ میں حق دو تحریک کی ریلی نکالنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی، خواتین پر تشدد۔ حق دو تحریک کیچ کی جانب سے تربت پریس کلب سے ریلی نکالنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ حق دو کی خواتین کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لیڈی پولیس اہلکاروں کی خواتین پر تشدد۔ حق دو تحریک کیچ کے زیر اہتمام گوادر میں حق دو تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف جمعرات کو تربت پریس کلب سے ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے پولیس نے ناکام بنا کر کارکنان کو پریس کلب کے سامنے سڑک سے باہر جانے نہیں دیا، جہاں پر خواتین کارکنان نے دھرنا دیا۔ انہوں نے گوادر میں حق دو تحریک کے خلاف حکومت کی پرتشدد کارروائی اور کارکنوں کی گرفتاری پر نعربازی کی اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ گوادر میں پولیس نے صحافی عبید اللہ کو گرفتار کر لیا۔ گوادر پولیس نے سید ظہور شاہ آشمی وارڈ میں صحافی کے گھر پر چھاپہ مار کر گوادر پریس کلب کے سابق جوائنٹ سیکریٹری حاجی عبید اللہ کو 3 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ حاجی عبید اللہ روزنامہ جسارت سے وابستہ ہیں اور ان کا شمار گوادر پریس کلب کے باقی ارکان میں ہوتا ہے، بانی ارکان میں ہوتا ہے۔ گوادر کے سینئر صحافیوں کی مداخلت پر گرفتار صحافی کے 3 بیٹوں کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ دریائے نہنگ میں بہہ جانے والی گاڑی میں سوار بچی کی لاش 62 گھنٹے بعد نکال لی گئی۔ تمپ میں دریائے نہنگ کے ریلے میں بہہ جانے والی بچی امیرہ بنت عثمان کی لاش 62 گھنٹے بعد جائے وقوع سے 5 کلومیٹر دور نکال لی گئی۔ مقامی نوجوان شہجان نثار نے طویل جدوجہد کے تحت غوطہ لگا کر لاش کو جھیل سے نکالے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز نہنگ میں گومازی کراس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں شادی سے واپسی پر ایک پک اپ گاڑی دریائے نہنگ کی سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی، جس میں سوار خواتین، بچوں سمیت تمام افراد کو بچا لیا گیا تھا، مگر 2 سالہ بچی امیرہ بنت عثمان سکنا دازن کو پانی بہا کر لے گئی تھی۔ گوادر میں تجارتی مراکز اور کاروباری سرگرمیاں بحال۔ گوادر شہر میں تجارتی مراکز اور کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر
ग्वादर की एलामिया के मुताबिक दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप खुल गए, जबकि सुरबंदर में भी मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। वाज़ेह है कि अक़दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ग्वादर, ओरमाड़ा और पसिनी में शटर डाउन हड़ताल जारी थी। कारकुनान ने मकुरान, कोस्टल हाईवे, ओरमाड़ा और पसिनी 0 पॉइंट को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। पुलिस ने हक दो तहरीक के धरने पर धावा बोल दिया था और तहरीक के कायद हुसैन वाडेला समेत कई रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद ग्वादर में नाफिज दफ़ा 144 में 1 माह की तोसी, रैली, धरना और इज्तिमा पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक ग्वादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के महकमा दाखिला के मुताबिक 1 माह तक ग्वादर में रैली, धरना और 5 या ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि ग्वादर में असलाह की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बलूचिस्तान में जामियात माली बहरान का शिकार हैं। HEC से मिलकर मसाइल हल करेंगे सूबाई वज़ीर तालीम। बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने कहा है कि बलूचिस्तान की जामियात माली बहरान का शिकार हैं। इस मामले को जल्द हल किया जाएगा। 3 जनवरी को हायर एजुकेशन कमीशन के हुकाम क्वेटा आ रहे हैं। उनके साथ मिलकर इन मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी ताकि तालीमी अदारों की मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन बनाया जा सके और अदारे तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को जारी रख सकें। इस मौके पर वाइस चांसलर फ़ारूक बाज़ई समेत दीगर भी मौजूद थे। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने जुमरात को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस के 18वें कन्वोकेशन में 750 ग्रेजुएट को डिग्रियाँ दें, जिनमें 32 गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल थे। संगर में मुसाफिर कोच उलट गई। नौशकी में वैगन सैलाबी रेले में बह गई, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। क्वेटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच फिसलने से रोड से उतरने के बायस मुतअद्दिद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर नवाब गौसबख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता शब क्वेटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच मसनूम के इलाके संगर के करीब बारिश के बायस फिसलने से रोड से नीचे उतर गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलावा अज़ीं नौशकी में गुज़िश्ता शब बारिश के बाद नौशकी के नदी नालों में तुग़यानी जुमरात के रोज़ अला सुबह RCD शाहराह पर मुसाफिर वैगन सैलाबी पानी में बह गई, जिससे वैगन में सवार कई मुसाफिर पानी में फंस गए। एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स सैलाबी पानी में बह गया। आसपास खड़े लोग सैलाबी पानी में कूद कर उन्हें रेस्क्यू करके बाहिफाजत सैलाबी पानी से निकाल कर बचा ले गए। सरदार अख्तर जान मेंगल की अहलिया शदीद अलील दुबई में ज़ेर इलाज। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की अहलिया शदीद अलील दुबई में ज़ेर इलाज। सरदार अख्तर मेंगल की अहलिया शदीद अलील हैं, जो दुबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अहलिया की तबीयत की नासाजी के बायस सरदार अख्तर मेंगल भी दुबई में हैं। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से तमाम बहनों और भाइयों से उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। अक़दो तहरीक के रहनुमा वसीम सफ़र और सबगतुल्लाह ज़मानत पर रहा। गुज़िश्ता रोज़ अक़दो तहरीक के 2 रहनुमा वसीम सफ़र और सबगतुल्लाह शाहजी गिरफ़्तार हुए थे। वो नेशनल पार्टी की ज़मानत पर रिहा कर दिए गए। नेशनल पार्टी की मकामी क़यादत ने उनकी रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर आल पार्टीज़ केश ने मुतालबा किया कि ग्वादर समेत मकुरान भर में अक़दो तहरीक और दीगर सियासी जमायतों के गिरफ़्तार कारकुनान को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। बरतरफ़ी और तबादलों की धमकियाँ हमें हुकूक से दस्तबरदार नहीं कर सकती। ऐप का बलूचिस्तान आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशंस वर्कर वेलफेयर बोर्ड यूनिट के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक़ में और सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के रवैये के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अरशब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। फ़ुटबॉल के बादशाह पीले दारफ़ानी से कूच कर गए। फ़ुटबॉल के बादशाह पीले 82 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए हैं। वो हालिया बरसों से गुर्दे और प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे।
जब मामूल के टेस्टों में ट्यूमर का पता चला था तो पीले ने सितंबर 2021 में साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में अपनी बड़ी आंत से ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी कराई थी। उन्हें गुज़श्ता माह के अख्ताम पर दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल से उनकी बेटी केली नासिमेंटो अपने वालिद की सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर बाकायदगी से पोस्ट करती थीं। जुमरात को उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि उनके ख़ानदान के अफराद पीले की लाश पर हाथ रखे हुए हैं। इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा कि हम जो कुछ हैं वो आपकी बदौलत हैं, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, रेस्ट एंड पीस। पीले ने अपने 21 बरस के कैरियर में 1363 मैचों में 1281 गोल किए, जिसमें ब्राज़ील के लिए 92 मैचों में 77 गोल भी शामिल हैं। वो 1958, 1962 और 1970 में 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ील की टीम का हिस्सा थे, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड भी है। पीले सन 2000 में फीफा के सदी के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। ब्राज़ील के अजीम फुटबॉलर पीले की आखिरी रसूमात पीर और मंगल को सेंटोस में उनके घर में अदा की जाएंगी। बलोचों के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद ने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान हुकूमत महज रैत की बोरी है। अफराद से आप खटक। बलोचों के पुरअमन एहतजाज पर भी तशद्दुद किया जाता है, आवाम को क्यों बदज़न किया जा रहा है? मंजूर पश्तीन। ANP के रहनुमा साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि ग्वादर में बलोच अवाम के जायज़ मुतालबात के लिए होने वाले पुरअमन मार्च पर हुकूमती तशद्दुद ने साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं बल्कि वो महज रेत की बोरी है, जिसे असली हुक्मरानों ने अपने दिफा के लिए सामने रखा हुआ है। हथियारों के ज़रिए हुक्मरानी दायमी नहीं हो सकती है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मंजूर पश्तीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि बलोचों को कहा जाता है कि आइन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से अपने हुकूक की बात करोगे तो रियासत मसले हल करेगी, मगर जब कई दिनों से ग्वादर में बलोच पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं तो उन पर तशद्दुद भी किया जाता है और मुतालबात भी नहीं माने जाते हैं। क्यों आवाम को बदज़न किया जा रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का ग्वादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने ग्वादर में एहतजाजी मुजाहरे के बाद गिरफ्तारियों और इमरजेंसी के नफाज पर तशवीश का इजहार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ग्वादर के लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया जाए और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की आज़ादी इजहार राय का एहतराम करे। सीरिया में आयल फील्ड वर्कर्स की बस पर हमला, 10 मज़दूर हलाक। सीरिया में आयल फील्ड के वर्कर्स की बस पर हमले में 10 मज़दूर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला सीरिया के सूबे दिराजोर में वाक़ आयल फील्ड के करीब किया गया है। हमले में मुतअद्दिद मज़दूर ज़ख्मी भी हुए। हुकाम ने हमले से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। सीरिया में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक धमाका खेज़ डिवाइस से मज़दूरों को ले जाने वाली बसों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ कुर्द तंजीम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इलाके में दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब व शबात।